Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What is the difference between nutrient immobilization and chelation? Actually, in both the process, nutrients are not available in soil solution and that's why not available to the plant. So in both the process, nutrients are not available and in both the process, nutrients are combined with the organic molecules. So what is the difference between nutrient immobilization and chelation? Actually, both the process are different and the mechanism is different. So what are the key difference point in immobilization of nutrient and chelation? So first of all, immobilization. When we talk about immobilization, the inorganic form of nutrient, inorganic form for example, if we talk about nitrogen, ammonium ion or nitrate ion are converted to organic form. Organic form means the nutrient is present in carbon chain. So in carbon chain means now if nitrogen is present in protein, then this form is called organic form. If nitrogen is present in ion, either it is ammonium or nitrate, then it is called inorganic form. When nutrient is converted into inorganic form to organic form, then it is called immobilization. But this organic form is in microbial tissue. Microbes use the nutrient for their cell synthesis, for protoplasm, for metabolic activity. So they use the nitrogen in protein, phosphorus, sulfur, calcium, magnesium. Microbes, whether it is a bacteria, fungus, actinomycetes, they use the nutrient. तो सॉइल सॉल्यूशन में जो माइक्रोब्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, उनको भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सल्फर की. तो और वो इस न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी में सेल सिंथेसिस के लिए, प्रोटोप्लाज्म के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए यूज कर लेते हैं. तो अब उनकी बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिएंट है और वो सॉइल सॉल्यूशन में नहीं आ पाते. दैट इज immobilization. Suppose this is in soil solution. Suppose this ammonium, nitrate, phosphate, sulfate, phosphate ions are there, H2PO4 is there, sulfate ions are there, for example, and calcium is there, magnesium is there. These are in soil solution. Suppose this is a soil solution and number of ions are present in soil solution and microbes are also present in soil solution. And microbes, suppose this is the microbial cell. So these nutrients are now inside the body of the microbes. So now these nutrients are utilized in protoplasm, in cell synthesis. Now protein is there, phosphorus is there, sulfur, calcium, magnesium. Now the nutrients are inside the microbial body. अब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर है, फंगस के अंदर है, तो अब ये आयनिक फॉर्म में नहीं है. These are in organic form. This is the immolation process. So this is the mechanism of immolation when the microbes use the nutrients for their own body synthesis. Then these nutrients are not present in soil solution. तो ये जो process है that is known as immobilization. And in case of chelation, actually the nutrients which are present, for example ammonium, nitrate, for example calcium, magnesium, number of ions are there. But in case of chelation, the metallic cations, particularly zinc, iron, whether it is ferric or ferrous, copper, manganese, particularly these cations, they have high affinity for organic molecules. ये ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के साथ, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ अटैच हो जाते हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिक मैटर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज देयर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर देयर, फिनोलिक ग्रुप्स आर देयर, and these groups carry negative charge. So these zinc, copper, manganese, these are attached with this negative ion of organic matter. So this is in organic matter. So these negative charges are on organic matter and humus also. ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस जो होता है उसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जैसे कि क्ले में होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है, जो मैंने अभी आपको दिखाए. तो इनके ऊपर ये अटैच हो जाते हैं
and this make a complex, and this complex is known as organomineral complex. इसको हम organomineral complex भी कह सकते हैं. So chelation is a process of binding of the nutrient on the negative sides of the humus and organic matter, and there is no transformation of the nutrient. Here nutrient remain as such, zinc remain as such, manganese remain as such, but in case of immobilization these ions move inside the microbial body. जो इमोलेशन में होता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं माइक्रोब्स की बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहां उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो हियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस, न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस in an organic compound, and here there is no transformation nutrient, and this emulsion take place for many nutrients. तो emulsion किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए हो सकता है, particularly नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के लिए होता है, लेकिन ये किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए हो सकता है बिकॉज माइक्रोब्स रिक्वायर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो माइक्रोब्स को बहुत न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, कैल्शियम की भी जरूरत है, तो कैल्शियम बॉडी के अंदर चला जाएगा माइक्रोब्स की, तो वो इमोबिलाइज होगा क्योंकि अब सेल सॉल्यूशन में नहीं आ सकता. बट दिस चिलेशन इज particularly for this metallic cation. So this is the difference between immolation and chelation. तो अब हम अगर देखें तो immolation take place for any nutrient which is required by microbes. तो immolation उस nutrient के लिए होता है जिसको microbes की जरूरत है. But chelation take place particularly for metallic cations. ऐसा नहीं कि कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं है, कैल्शियम मैग्नीशियम भी है, लेकिन particularly metallic cations की affinity ज्यादा होती है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर पे हेल्ड कर लेते हैं. सपोज दिस इज द ऑर्गेनिक मैटर, एंड इट कैरी नेगेटिव चार्जेस. सो इट कैरी जिंक, इट अट्रैक्ट द जिंक, इट अट्रैक्ट द आयरन, इट अट्रैक्ट द कॉपर, इट अट्रैक्ट द मैग्नीज, आल्सो अट्रैक्ट द कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, बट these four are particularly important, and this is a complex. Now zinc remain Zn++, iron remain as such Fe++, but here in case of emulsion nutrient form is change. अब नाइट्रेट अमोनियम प्रोटीन बना लेंगे, फॉस्फेट जो आयन है वो मेटाबोलाइज हो जाएंगे, सल्फर भी प्रोटीन बना लेगी, तो कैल्शियम किसी कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाएगा या कार्बन कंपाउंड्स में अटैच होगा. लेकिन यहाँ क्या है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहता है और ये ऑर्गेनोमिनरल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो सॉल्युबल है, फ्रीली अवेलेबल, एंड दे आर रिलीज्ड after some time, and they come again into the soil solution. They are released and come into the soil solution. Suppose it is the soil solution, they are in soil solution, they come on the surface of the organic matter and humus, and they are released. So this is a reversible process, absorption and desorption, absorption and desorption. So this is the adsorption and desorption. So chelation में उसको रिलीज कर देता है. तो चिलेशन एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के साथ ही होते हैं, ये एक बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन इमोलेशन में ये ध्यान रखने वाली बात है बिल्कुल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोब्स फॉर देयर सेल सिंथेसिस, फॉर प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, फॉर अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो यहां ये कब रिलीज होगा, इमोबिलाइज हो गया है, when there is a death of microbes. अब ये देखिए माइक्रोब, सपोज दिस इज बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर सपोज देयर, and they contain the nutrient inside their body in different organic form, and they are locked. Nutrients are locked. ये bind नहीं है, उसकी body के अंदर है. So when they will be free, कब free होंगे? When there is a death of microbes, then there is a decomposition of their body by another type of microbes. तो ये microbes की death हो जाएगी, इनकी body को दूसरे तरह के microbes इन पर एक्ट करेंगे, इनको डिकम्पोज करेंगे, तब ये जाकर के ये फिर रिलीज होंगे. देन न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड, and that process is called mineralization. So this process is mineralization. So in case of mineralization, nutrients are released when there is a death of microbes and the compounds inside the body is decomposed. The nutrients are released. तो immobilize अगर nutrient हुआ है तो वो तभी रिलीज होगा जब उसका फर्दर डिकम्पोजिशन होगा, दैट इज नोन एज मिनरलाइजेशन. एंड हियर इट इज द एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन. यहाँ एडजॉर्प्शन डिसॉर्प्शन में देयर इज नो रोल ऑफ माइक्रोब्स. हियर माइक्रोब्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, हियर माइक्रोब्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व. सो दिस इज द डिफरेंस इन इमोबिलाइजेशन एंड चिलेशन. सो चिलेशन इज पर्टिकुलरली फॉर मेटालिक कैटायंस. तो चिलेशन पर्टिकुलरली किसके साथ होना है, जिंक, आयरन, कॉपर के साथ होता है, और एक तरह से ये जो न्यूट्रिएंट्स की जो लीचिंग है इसको प्रिवेंट करता है, बिकॉज देयर इज एक्सिस ऑफ आयरन, जिंक एटसेट्रा, दे मूव डाउनवर्ड, देयर में बी लीचिंग, सो दे हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स. अदरवाइज
these nutrients may be precipitated, may be converted into insoluble compound, may be converted into hydroxide, oxides. अगर ये चिलेशन ना हो तो ये बड़े रिएक्टिविटी इनकी हाई है, तो कोई ऑक्साइड्स बना लेंगे या हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे जो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. सो दैट्स वाई चिलेशन हेल्प इन न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी. बट इफ देयर इज हाई डिग्री ऑफ चिलेशन, अगर बहुत ज्यादा चिलेशन हो गया, बहुत बॉन्ड इसने बना लिया, देन दे आर नॉट रिलीज्ड एंड देयर में बी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. तो ये जो चिलेशन होता है पर्टिकुलरली माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए होता है, जबकि इमोलेशन सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए होता है. उसमें भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में चिलेशन इज पर्टिकुलरली फॉर दिस, फॉर जिंक, आयरन, कॉपर एंड मैग्नीज. तो ये एक डिफरेंस है इमोलेशन का और चिलेशन का. बट चिलेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अटैच हो जाएगा, उसको रिलीज नहीं करेगा एंड देयर में इज चांसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट. और यहां तो डेफिशिएंसी होती ही होती है इमोलेशन में, क्योंकि वो सॉइल सॉल्यूशन में नहीं है. इसलिए जब भी इमोलेशन होगा प्लांट सफर करेंगे डेफिशिएंसी से, और तभी न्यूट्रिएंट्स इज रिलीज आफ्टर डिकम्पोजिशन, दैट इज द मिनरलाइजेशन. यहां चिलेशन में क्या है, हेल्पफुल प्रोसेस है. इट इज हेल्पफुल प्रोसेस दैट प्रिवेंट द माइक्रोन्यूट्रिएंट इनसॉल्युबल कंपाउंड्स and maintain the solubility and the availability of the nutrient. So this is the difference in immolation and chelation. ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या immolation है, क्या chelation है. दोनों ही प्रोसेस से न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होते हैं प्लांट को, लेकिन chelation we can say it is just like a adsorption and sorption process only. Electrostatic force is there, attraction force are there, chelates are there, some combination chemical bonds are there. But this is the biological activity. In case of immolation, these are the biochemical reaction. Nutrient transformation is there. Here there is no nutrient transformation. जिंक है, जिंक की तरह रहेगा, आयरन है, आयरन की तरह रहेगा, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा. यहाँ फास्फोरस चेंज हो जाएगा, सल्फर उसके अंदर आके कुछ कंपाउंड्स बनाएगा, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाएगा, इससे प्रोटीन बनाएगा. तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है. तो दिस इज द डिफरेंस इन इमोलेशन एंड चिलेशन. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, दोनों तभी होते हैं यहां जब ऑर्गेनिक मैटर होता है तो माइक्रो एक्टिविटी बढ़ जाती है. व्हेन देयर इज ए ऑर्गेनिक मैटर एंड देन माइक्रोब्स एक्ट ऑन ऑर्गेनिक मैटर एंड दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, दैट्स व्हाई दे यूज द न्यूट्रिएंट व्हिच आर इन सॉइल सॉल्यूशन. तो हमने ऑर्गेनिक मैटर डाला खेत में, तो माइक्रोब्स उस पर एक्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, अब उनको न्यूट्रिएंट चाहिए. तो अगर ऑर्गेनिक वो न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मैटर में है तो सही है, अगर नहीं है न्यूट्रिएंट तो क्या करते हैं, सॉइल सॉल्यूशन से माइक्रोब्स उन न्यूट्रिएंट्स को, जो भी है नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फर है, जो भी है, उसको यूज कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर. उसको बोलते हैं इमोलाइजेशन. और यहां क्या है, यहां ऑर्गेनिक मैटर पर डायरेक्ट होते हैं, यहां माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो यहां जो है कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो बहुत ऑर्गेनिक एसिड्स भी चिलेशन का काम करते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस से ही होता है, जबकि इमोलेशन माइक्रोबियल बॉडी के अंदर होता है. सो दिस इज द डिफरेंस इन इमोलेशन एंड चिलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट. थैंक यू वेरी मच.